in the first 12 months, of the pandemic, there has been an enormous transfer of wealth from poor to rich. It's an astonishing transfer of wealth. It has never, the rate of transfer of wealth in the first 12 months, in the first year of the pandemic, has never been seen in independent India. And this is your 75th year of independence. If you look at in the first 12 months, उसको देखिए आप क्या क्या हुआ वो पहला 12 महीने में। भारत का अरबपति, डॉलर अरबपति, उसका संख्या 102 से 140 बन गया। We went from $102 billionaires to $140 billionaires in the first 12 months of the pandemic. Okay? And in no year, in no preceding year, did India add 38 billionaires in 12 months. Dollar billionaires, dollar अरबपति, रुपया अरबपति नहीं, डॉलर अरबपति। और उसमें these 140 individuals doubled their wealth in 12 months from 249 crores from $249 billion, sorry, 239 अरब डॉलर से उनका पर्सनल वेल्थ बढ़ गई 596 अरब डॉलर तक, $596 बिलियन। ये नंबर सब कहाँ आते हैं? Forbes.com। फोर्ब्स मैगजीन जो है वो कैपिटलिज्म का बाइबल कह सकते हैं, गॉस्पेल कह सकते हैं। Forbes is the magazine of billionaires. The owner of the founder of the magazine, Stephen Forbes, वो भी अरबपति हैं 20 साल से। और उनको ये कहना है कि जितना अरबपति का धन दौलत बढ़ गई पहला 12 महीना पैंडेमिक से, वो कभी उनको वो भी नहीं देखा कभी इतना बढ़ाना अरबपति का वेल्थ। और भारत का जो अरबपति है 2 गुना बढ़ गई। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि 5 साल में किसानों का इनकम 2 गुना बढ़ जाएगी 7 साल में। 2015 से बताया और 22 आज इन दिस ईयर the wealth of the income of farmers should have doubled. Actually, farmers' income cultivation से जो है वो नेगेटिव हो गया। आप 77th राउंड NSS रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप देख सकते, उसके बारे में मैं बाद में थोड़ा और बताता हूँ। लेकिन the man who promised that farmers' income will double in 5 years, that did not happen. But the 140 billionaires of India, they doubled their wealth in 12 months. How does this happen with design? And they did not double their income from growth of the economy. ये नहीं हुआ कि इकोनॉमी बढ़ गई और उसका वेल्थ बढ़ गई। सरकार के प्रकार इकोनॉमी का ग्रोथ रेट गिर गई 7.7% से गिर गई। इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.7%, लेकिन अरबपति का वेल्थ डबल हो गई। इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड, तो कैसा हो सकता है कि ये इनका दौलत बढ़ गई 2 गुना बढ़ गई? ओनली बाय ट्रांसफर ऑफ वेल्थ
from poor to rich. और कैसा हो सकते हैं? How else can it happen? By squeezing the poor, by privatization of public wealth. This is the only way when the economy has collapsed 7.7% for the top. और ये 140 अरबपति आपकी जनसंख्या में क्या परसेंटेज है? भारत का जनसंख्या उस समय 1.3 अरब, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, उसमें 140 व्यक्ति जनसंख्या 1.3 बिलियन, 140 बिलियनर्स का डॉलर, और वो उसका परसेंटेज क्या है? 0.000014% है. From 1.3 billion percent, the percentage of India's 140 billionaires is 0.00014%. लेकिन this 0.00014% is controlling 22.7% of GDP. $596 billion आपका GDP 2 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा है. तो 140 individuals are owning wealth equivalent to 22.7% of gross domestic product. और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो 140 बिलियनर से जो सबसे आगे हैं 5-6, their wealth is greater, the top 5 or the top 10, their wealth is greater than almost the remaining 100. And in the top 10, the top 5 are all Gujaratis. ये भी all are Gujaratis. Ambani, Adani, Premji, Sangvi, all are Gujaratis. One point. How did this pandemic, is it new that because of a disaster the ruling class makes much more money? No, it's not new. It is called disaster capitalism. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये कैसा होता है. आप सब जो यहां बैठे हैं याद है 2004 में दिसंबर 26, 2004 में क्या हुआ देश में? सुनामी. जब सुनामी हुआ 11 देश को सबसे सीरियस इफेक्ट हुआ, 11 देश को. और उन 11 देश में 5 देश हैं जहां बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है. उसमें छोटा मोटा देश है उसमें जहां स्टॉक एक्सचेंज का भी मतलब नहीं है उसमें, लेकिन 5 देश था जहां बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है. इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका. 26 December 2004 tsunami happens. First week of January से ये 500 स्टॉक एक्सचेंज अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिक रिकॉर्ड हाइट्स पर आ गया. उस जमाने में दिसंबर 26 बॉम्बे का सेंसेक्स कभी 4000 से ज्यादा नहीं गया पॉइंट. अभी जो 60,000 पे है, कभी 4000 से ज्यादा नहीं गया. मुंबई का सेंसिटिव इंडेक्स जो सबसे आगे 30 कॉर्पोरेट का है उसको सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं, और वो कभी 4000 से ज्यादा नहीं गया. पहले बार 6000 का बैरियर ब्रीच हो गया और आज 60,000 पे है. इंडोनेशिया
जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, सुनामी की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्टेड नेशन था इंडोनेशिया। वहां जकार्ता स्टॉक इंडेक्स, वो स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग इफेक्ट हो गया, उसका फाउंडेशन रॉक हो गया, लेकिन उसका इंडेक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया स्टॉक एक्सचेंज जितना वो बढ़ गया कभी हुआ नहीं उसके इतिहास। CSI, कॉम्पोजिट शेयर इंडेक्स ऑफ कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज, वो डबल हो गया, ऑलमोस्ट टू द पीरियड व्हेन it was beginning and started, it reached its highest. SETI, Stock Exchange of Thailand International, reached its highest position in history, even as Pattaya, all those areas were drowning under the tsunami. And the same happened with the KLSC, Kuala Lumpur Stock Exchange. So every one of the 5 countries worst affected who had stock exchange, lakhs of people died. Indonesia alone, 250,000 people were affected by the tsunami. And it reached the greatest height. It is why? 2 reasons. One, the stock exchanges were smelling the reconstruction dollar that would come. The contracts for construction, reconstruction. So that money, so-called rehabilitation money, it went to the people who are the biggest players in the stock exchange. Second is a very simple principle of disaster capitalism, of capitalism itself. Yes. The incredible prosperity of the few has always to be based on the unbelievable misery of the many. Everyone, I don't have to teach you that principle of capitalism. It's something we all see every day of our lives. तो ये disaster period में भारत का अरबपति 2 गुना बढ़ गया, 596 अरब डॉलर तक बढ़ गई उनका पर्सनल वेल्थ। और सेक्टर वाइज आप देख लीजिए, उसमें 2 सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। 2 सेक्टर, यह 140 बिलियनर में अलग अलग 5-6 सेक्टर है, ऑयल, माइनिंग, जो भी है, लेकिन 2 सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट बन गई। एक तो सबसे पहला हेल्थ केयर। अभी हमारा अरबपति का लिस्ट में 24 हेल्थ केयर सेक्टर का अरबपति है, फोर्ब्स लिस्ट, डॉलर अरब। और उसका जो टॉप 10 है, अगर हम रुपया में देखेंगे, within the 24 health billionaires, the top 10 health billionaires, they added average पे हर दिन वो 10 व्यक्ति हर दिन एक साल में हर दिन 5 अरब रुपया, they added 5 billion rupees every single day, every 24 hours for 365 days. The other sector that was top was IT, online education. Baiju, the value of Baiju more than doubled. Baiju's personal wealth more than doubled. He added 187 billion rupees to his personal wealth. Baiju Ravindra Kumar, जो भी उसका नाम है. Online education added incredible amounts of money, while tens of millions of Indian children lost, total access to education was lost. But India's online education companies
trebled their wealth. This is what is your disaster capitalism. The exploitation of disaster, of misery, of poor people and their helplessness. Now, in the same period, in the hunger index, in the global hunger index, India fell from 94 rank, 94 रैंक से 101 तक गिर गया और उसमें वो टोटल रैंकिंग में 116 देश है. Our ranking in the global hunger index fell from 94 to 101. Many African nations went ahead of India. Many Latin American nations did better than India in the global hunger index. And the Journal of Food Policy, एक बड़ा जर्नल है, रिसर्च जर्नल, उसने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें आपको ये पता लग जाएगा 63% of rural India, 63% of rural India मतलब 520 million करीब कुछ आती है, 500 million करीब, मतलब 50 करोड़ करीब. 63% of rural India, even if they spend 100% of their income, जो भी वो कमाएंगे, अगर वो सिर्फ खाना पे स्पेंड करेंगे, even if they spend 100% of their income on food, 63% of rural India cannot afford a basically nutritious diet. Suppose we permit them to spend 25% of their income on non-food items like rent, health, education, then the percentage of Indians, rural Indians, who cannot afford a nutritious diet, वो बन जाती हैं 76%. 76% of rural Indians, even if they spend 75%, उनका इनकम जो है उससे 75% खाना पे लग जाएगा तो भी 75%, 76% rural Indians cannot afford a basically nutritious diet. जहां 140 अरबपति का इनकम डबल हो गया. और जब पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ, we were one of the only India सब में, जब से मोदी साहब आए, we are first in everything. The capitalist nations in Europe, Spain, Ireland, पैंडेमिक का पहला हफ्ता, पहला वीक में कैपिटलिस्ट नेशन ऑफ आयरलैंड एंड स्पेन पूरा हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नेशनलाइज कर दिया. Several other nations did this. First, Ireland and Spain did it in the first week of declaring the pandemic. यहाँ हेल्थ सेक्टर ने हमको और प्राइवेटाइज किया. ये भी एक मोदी जी का एक फर्स्ट. We privatized more. Remember this, that vaccine sector में India was a leader. और वो कब था? जब public sector was half a kind institute. वो ऐसा institutions था, मुंबई का half a kind institute. आपका पोलियो, pulse polio vaccine, many other vaccines were developed. India was the manufacturing center of vaccines in the world. अभी सब प्राइवेट हैंड्स में चले गई और अब 12 महीने में देख रहे हैं कि 10 हेल्थ केयर का अरबपति, उसका इनकम एवरी डे they added 5 billion rupees, the top 10, but there are 24 of them.
एग्रीकल्चर पे आइए। जनवरी 2017 में फॉर्मली अनाउंस किया, 2015 में भी अनाउंस किया, लेकिन अरुण जेटली साहब बजट के टाइम में अनाउंस किया 5 साल के अंदर अंदर किसानों का आय 2 गुना बढ़ेंगे हम। याद है अरुण जेटली का स्पीच? He said this government will double the income of the farmer in 5 years. तो 2021 जुलाई अगस्त में ये सितंबर अक्टूबर में ये रिपोर्ट आ गया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का 77th राउंड। एनएसएस इस देश का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन एजेंसी। क्या दिख रहा है उसमें? देखो, किसान का इनकम 3-4 जगह से आती है, एक सोर्स से नहीं। एक तो किसान का इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट बेसिक, वो कल्टीवेशन से आती है। जो फसल लेते हैं, क्रॉप इनकम जो कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है किसान की जीवित में। दूसरा किसान को मिलता है लाइव स्टॉक से, पशुपालन, काउस, बफलोस, गोट्स, जो भी शीप, उससे भी इनकम मिलता है किसान को। डेयरी। तीसरा किसान को मिलता है वेज लेबर से। आप सब जानते हैं इस देश में एक भी छोटा किसान नहीं है जो सिर्फ कृषि पे रह सकते हैं, नहीं। वो जाके दूसरा सीजन में मजदूर बन जाते हैं और नॉन एग्रीकल्चरल सीजन में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लेबर बन जाते हैं। तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम, वेज लेबर। जब 2013 का लास्ट एनएसएस रिपोर्ट में ऑल इंडिया एवरेज इनकम ऑफ द फार्मर, ऑल इंडिया एवरेज इनकम, मंथली इनकम ऑफ अ फार्मर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल का इनकम फिगर नहीं है उसमें। हाउस होल्ड मतलब क्या? एवरेज 5 जन। पंजाब में 5.4, हरियाणा में 5.9, 5.9 हाउस होल्ड एक किसान के परिवार में। और ऑल इंडिया फिगर ऑफ इनकम इन 2013 फॉर अ फार्मर हाउस होल्ड 6,426 रुपया। 6,426 रुपया मतलब इफ यू टेक 5 जन तो उसका पर कैपिटा एवरेज 1,300 रुपया भी नहीं है। 1,300 रुपया भी नहीं। अब इस डबल होने के बाद क्या मिल रहा है? कह रहा है कि देखो अभी परिवार का, हर परिवार का 10,300 रुपया बन गई। लेकिन वो नंबर है नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, रियल इनकम नहीं है, वो नॉमिनल इनकम है। अगर आप रियल इनकम लेंगे 8,230 बन जाएगी। और वो 8,230 में कौन सा सेक्टर बढ़ गई? वेज लेबर से पेमेंट बढ़ गई सबसे ज्यादा, वेज लेबर। इसका मतलब देखो और बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आने वाला है किसान और खेत मजदूर के बीच में एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आने वाला है। The two sectors from which the income of the farmer increased was wage labor and livestock. और कल्टीवेशन से डिक्लाइन हुआ।
नेगेटिव हुआ। क्या वो वादा किया मोदी जी ने और अरुण जेटली साहब ने? फार्मर्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर विल डबल इन 5 years। वो एग्रीकल्चर से जो इनकम था वो रिड्यूस हो गया, लेकिन 140 व्यक्ति का धन दौलत 2 गुना बढ़ गई। $596 बिलियन तक। और आप देखिए माइग्रेंट्स के बारे में जो मीडिया है आपका, मार्च अप्रैल 2020 में आप उन लोग ने कहा आपको दुनिया में सबसे बड़ा रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लाखों लोग जा रहा है, लाखों नहीं करोड़ों लोग तक ये हो रहा है देश में। लेकिन वो भी 1 महीने के बाद सरकार ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने मार्च 31 11 बजे को। उसने कहा एज ऑफ टुडे दिस